What is Euclid's division lemma? What are the conditions on remainder? And can remainder ever be equal to divisor? And why? बस यही सब पिछले वीडियो में कवर किया था. Welcome back to the day 2 of foundation. This is Yash और ये है Brainwave 10 chart study equal to Clarity plus 1. बने रहिए. So as promised, आज हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. Question number 1. Use Euclid's division lemma to find remainder when a is equals to 30 and b is equals to 4. सोच के देखो सर. Euclid's division lemma क्या कहता है? a is equals to b cube plus r where 0 is less than or equal to r which is less than b. 13 क्या कैसे करेंगे? 13 divided by 4 is equals to 3. Remainder आता है 1. So 13 is equals to 4 into 3 plus 1. Here r is equals to 1. चेक करो जरा. 0 से बड़ा है 1 और 4 से तो छोटा ही है 1. तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1. वही क्वेश्चन नंबर 2 देख लो. Express 23 in the form of a is equals to b q plus r for b is equals to 5. So यहाँ पे हम लोग देखते क्या है. 23 divided by 5 कितना मिलता है? 4. रिमाइंडर कितना बचेगा तुम्हारे पास? 3. So 23 is equals to 5 into 4 plus 3. और वहीं अगर तुम लोग चेक करते हो तो 0 से ज्यादा होता है 3 और 5 से कम होता है. बस इतना ही सही है. अब सर एक लेवल अब चलते हैं. Find the remainder when 100 is divided by 7 using Euclid's division lemma. यहाँ पे 100 divided by 7 करोगे तो कितना मिलता है? 14. और रिमाइंडर क्या बचता है तुम्हारे पास? 2. So भैया 100 is equals to 7 into 14 plus 2. रिमाइंडर क्या हुआ? 2. क्या बात है? You're getting hang of it. Next question देखते हैं. Write 45 in the form of a is equals to bq plus r for b is equals to 6. Solve करिए. 45 divided by 6 7 और रिमाइंडर क्या बचता है? 3. 45 is equals to 6 into 7 plus 3 और वहीं अगर तुम लोग चेक करोगे तो आंसर भी सेम आ जाएगा. Question number 5. Can the remainder be 6 when a number is divided by 6? Explain. तो भैया according to Euclid's division lemma 0 से ज्यादा होना चाहिए r और b से कम होना चाहिए. 0 के बराबर भी रहा तो भी चलेगा. अगर b इज इक्वल्स टू तुम्हारा 6 है और रिमाइंडर भी तुम्हारा 6 है तो क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी? Therefore, r is equals to 6 is not possible because division is not complete. यही लिखना है आंसर में तुमको. अब थोड़े बोर्ड स्टाइल के क्वेश्चन सॉल्व करके देखें. If a is equals to 7q plus r where 0 is less than or equal to r which is less than 7. तो भैया सारे पॉसिबल वैल्यूज लिखनी है तुमको r के लिए. कैसे लिखोगे? Given 0 is less than or equal to r which is less than 7. तो भैया कितनी पॉसिबल वैल्यूज आएगी? 0 से लेकर 7 तक जहाँ पे 0 इंक्लूड होगा, है कि नहीं? परंतु अगर तुम सिर्फ होल नंबर्स देख रहे हो तो क्या लिखने में आएगा? 0 1 2 3 4 5 6. इतनी वैल्यूज आ रही तुम्हारे पास. अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं. Show that 35 is divisible by 7 using Euclid's division lemma. Euclid's division lemma से कैसे करोगे तुम लोग? 35 divided by 7 is equals to 5 और रिमाइंडर कितना बचता है तुम्हारे पास? 0. तो भैया 35 is equals to 7 into 5 plus 0. यहाँ पे r क्या है तुम्हारा? 0. इसका मतलब 35 is divisible by 7. Perfectly divisible by 7. अब थोड़े कॉम्पिटिटिव लेवल पे चलते हैं. If a number when divided by 9 gives remainder 4. Express the number using Euclid's division lemma. यहाँ पे तुमको क्या देके रखा है कि चलो a हम लोग मान लेते हैं उस नंबर को, तो b तुम्हारा क्या देके रखा है? 9 और r कितना देके रखा है? 4. So using lemma a is equals to 9q plus 4 where q is an integer. खत्म. यही तो आंसर हुआ तुम्हारा. अब अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं. A number leaves remainder 3 when divided by 6. What remainder will it leave when divided by 10? ये हुआ ना कुछ सवाल. Let the number be a is equals to bq plus 3. Now divide by 10. If q is even, तो रिमाइंडर कितना बचता है तुम्हारे पास? 3. वहीं अगर तुम्हारा q ऑड आ जाता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा तुम्हारे पास? 8. तो यहाँ पे रिमाइंडर तुम्हारा फिक्स्ड हुआ क्या? बिल्कुल भी नहीं. Cannot be uniquely determined. इतना लिख लेना बस. अब इसका भी एक लेवल ऊपर चल के देखते हैं. बस एक ही क्वेश्चन करेंगे इस चीज का. If a number leaves remainder 2 when divided by 3 and remainder 3 when divided by 4, write its general form. चलो देखते हैं. From first condition a is equals to 3m plus 2 मान के चलो. From second condition a is equals to 4n plus 3 है कि नहीं?
अब स्मॉलेस्ट नंबर सेटिस्फाइंग बोथ क्या रहेगा तुम्हारा? 3m plus 2 is equals to 11. That gives m is equals to 3. चेक करना, 11 divided by 4 is equals to 2. रिमाइंडर क्या आएगा तुम्हारे पास? 3 ना. So smallest number is equal to 11. जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो a is equals to 12k plus 11, where k is an integer. एक रिकैप वापस से कर लेते हैं. यूक्लिड्स डिविजन लेमा क्या कहता है? a is equals to bq plus r. और रिमाइंडर रूल भैया वो तो सोल है लेमा का, छोड़ के नहीं जाएगी. किस किस चीजों के लिए यूज होता है? टू चेक डिविजिबिलिटी, है ना, टू बिल्ड लॉजिक फॉर HCF या फिर रीजनिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. बस नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसका यूज क्लास 10 से लेकर JEE तक हर जगह होता है. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो B10 को. अब फटाफट से कमेंट करो यस सर ओपी. और अगर न्यूमेरिकल्स में डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिख देना. मैं पर्सनली आग गड़ाए बैठा हूँ. मैं हूँ यश और ये था B10, नॉलेज का शॉर्टकट और एग्जाम का पल्स को. हasta la vista.